Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. We have completed first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and then we have started with the second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and this chapter also we have completed. And now we are going to learn about chapter number 3, Issue of Shares. Okay, so today we are going to start with chapter number 3, that is Issue of Shares. So let's talk about introduction first. The name itself saying issue of shares. Okay, so how company issue shares, that we are going to learn in this chapter. What are the procedure, what is the meaning of allotment of shares, what is authorized capital, what is unauthorized capital, what is subscribed capital, what is unsubscribed capital, what is issued capital, what is unissued capital. Okay, so all such things we are going to learn in this chapter. Alright, so let's start now. ओके बेसिक्स में इसके लिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक्स अबाउट द शेयर्स फर्स्ट चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर सेकेंड तक के पूरा बेसिक जो है हमने वो क्लियर किया है. सो मुझे ऐसा लगता है कि भी आपको शेयर्स के बारे में सब कुछ पता है. ओके आपको पता है कि व्हाट इज शेयर. शेयर इज़ अ सोर्स ऑफ फंड एंड व्हेन यू टॉक अबाउट शेयर, तो शेयर इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ऑलराइट, the person who purchase the equity share, that person is known as equity shareholder, and the person who purchase the preference shares, that person is known as preference shareholders. Equity shareholders are the owners of the company because the dividend of equity shareholder is fluctuating rate of dividend, and preference shareholders are the co-owners of the company because their dividends are fixed rate of dividend. ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था. उसके बाद में हमने हमारा कोड था SRDP LLB. SR मीन्स ओन फंड, DP LLB मीन्स बोरोड फंड. ओके, SR मीन्स इंटरनल फंड, DP LLB मीन्स एक्सटर्नल फंड्स. तो ये बेसिक्स जो है हमने 3 बेसिक्स वीडियो में भी डिस्कस किया था. उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, उसमें भी हम लोग ने डीपली स्टडी किया है अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस. सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ गिवन इन योर बुक. So first introduction. In chapter number 2 we studied the different source of finance that a company can use to raise funds. हमने पढ़ा था about shares, reserve, debenture, public deposit, loan from bank, loan from financial institution and bonds. Okay, तो वही है different source of fund. All right. The capital structure of a company consists of its own funds and borrowed funds. Okay, तो जो हमारा कोड था SRDP, SR means what? SR means own fund, and DP LLB means what? Borrowed fund. Okay, debenture, public deposit, loan from bank, loan from financial institution and bonds. Okay, अभी बेसिकली borrowed fund का मतलब क्या होता है? उधारी का पैसा. Okay, the money which you have to repay after certain period of time, that is called borrowed fund. Own fund मतलब आपका खुद का पैसा. It is your own fund. Okay, all right. So now let's see what comes under own fund. Own funds are made up of equity shares, preference shares and retained earnings. Okay, तो हमने देखा था S के 2 पार्ट से, equity shares and preference shares, and R means reserve. reserve को ही हम क्या बोलते हैं? retained earnings. All right. A company limited by shares raise shares capital by issuing shares. So basically when company required fund, company can issue shares. All right. So in this chapter we will study in detail how a company issue different types of shares depending upon its needs. Okay, so we are going to learn about how company issue shares. Okay, we will also learn about various concepts related to shares. Okay, so basically हम लोग now we are going to learn about shares deeply, very deeply. All right. So as you can see here, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सारा मटेरियल आपकी बुक का ही है. ओके, जो SYJC न्यू सिलेबस आपका बुक है वही बुक का मैटर है सारा का सारा जो आपको सामने दिख रहा है. ओके, सो आप यही आपको नोट्स प्रिपेयर करना है. ऑलराइट, आपकी बुक में पूरा एक साथ में दिया हुआ है. मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड किया हुआ है चीज़ें, और कोई वर्ड जो डिफ़िकल्ट है उसको ईजी करके मैंने आपके लिए सामने रखा है. लेट्स स्टार्ट नाउ. शेयर कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. हमको ये ऑलरेडी पता है, बहुत टाइम हमने पढ़ चुका है इसको. यूजुअली इन प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन द प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विटी शेयर, तो कंपनी टेक मनी फ्रॉम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, तो इक्विटी शेयर का जो प्रपोर्शन होता है इट्स मोर देन द प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस प्रपोर्शन ज़्यादा होता है किससे? प्रेफरेंस शेयर से.
Okay, as you can see here, share capital can be classified as authorized or nominal or register capital. Okay, we will understand what is the meaning of authorized, nominal and register. ये एक ही वर्ड है, इनका मीनिंग भी सेम है. ऑलराइट, एंड देन वी विल सी इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल. फिर देखेंगे व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल, व्हाट इज अनसब्सक्राइब कैपिटल, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल एंड व्हाट इज अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल, व्हाट इज पेड अप कैपिटल एंड व्हाट इज कॉल्ड इन एरर. ओके, तो वन बाय वन सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो ये वीडियो में भी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 वीडियो बनेगा. ओके, देखते हैं अगर इसमें एक वीडियो में ही कवर होता है तो आई विल कवर इंटायर थिंग्स इन one chapter only. Alright, let's start now. Okay, when you talk about authorized capital, nominal capital, registered capital, so it is a capital which is you have taken the permission from the ROC. See what happens, if you want to start your company, so you will become the promoter. Alright, you will become the promoter. Now promoter is the person who have to prepare the all documents called memorandum of association, article of association. So in memorandum of association, that promoter have to write that how much money we are going to raise by issuing the shares. से एग्जाम्पल हमने उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग 1 लाख शेयर इशू करेंगे 10 रुपये से, जिसका वैल्यू कितना होगा 10 लाख. तो अभी अमाउंट कितना है 10 लाख रुपीज़. तो हम 10 लाख रुपीज़ ही इशू कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ROC रजिस्टर ऑफ कंपनी ने आपका जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद में ही आपको परमिशन दिया है बिजनेस करने का. ओके, सो जो परमिशन मिलेगा फ्रॉम ROC, दैट परमिशन इज नोन एज ऑथोराइज्ड. जितना यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10, 10 रुपये का एक है, 1 लाख शेयर है, अमाउंट कितना होता है 10 लाख. अब इसका मतलब क्या होगा? सो व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू इशू अ शेयर्स, so company can issue only 1 lakh equity shares, not more than 1 lakh equity shares. सर इससे कम हो सकता है क्या? यस, कंपनी कम इशू कर सकती है. कंपनी कैन इशू लेस देन द ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज शेयर्स, बट नॉट मोर देन द ऑथोराइज कैपिटल और शेयर्स. ऑलराइट, तो 1 लाख के ऊपर कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है. ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, 1 लाख का परमिशन मिल गया, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर हमारा क्या हो गया? ऑथोराइज हो गया. दैट मीन्स अभी अमाउंट देखोगे तो 10 लाख रुपीज़ इज द ऑथोराइज कैपिटल. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज इशूड कैपिटल एंड व्हाट इज अनइशूड कैपिटल. सी 1 लाख इक्विटी शेयर है. ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, द अमाउंट विल कम 10 लाख रुपीज़. दैट मीन्स योर ऑथोराइज कैपिटल इज रुपीज़ 10 लाख. इक्विटी शेयर्स कितना है? 1 लाख. ऑलराइट, इशू कितना किया, कितना आप इशू कर रहे हो? 40,000 इक्विटी शेयर्स यू आर गोइंग टू इशू ऑफ ₹10. द अमाउंट कम दैट इज़ 4 लाख रुपीज़. 4 लाख रुपये आपका अमाउंट आ गया. तो ये आपका इशूड कैपिटल हो गया, जितना आपने इशू किया है ना मार्केट. ऑलराइट, दूसरा अनइशूड कैपिटल, वो शेयर जो अभी तक आपने इशू नहीं किया है. मैंने बताया 1 लाख का इक्विटी शेयर आप इशू कर सकते हो, 1 लाख से कम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो. ओके, बट 1 लाख से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो. अब 1 लाख भी आप जो है आपकी मर्ज़ी है. आपको अगर 20,000 शेयर इशू करना है आप कर सकते हो. 30,000 इफ़ यू वांट टू इशू यू कैन इशू 30,000. इफ़ यू वांट टू इशू 40,000 यू कैन इशू 40,000. तो यहाँ पे एग्जांपल कितना दिया हुआ है? 40,000 का. तो यहाँ पे 40,000 इक्विटी शेयर जो इशू हुआ है और ₹10 ईच, अमाउंट कितना होता है? 4 लाख रुपीज़. ऑलराइट, अनइशूड जो अभी तक ये इशू नहीं किया है मार्केट में, दैट इज़ 60 लाख इक्विटी शेयर्स. 60,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच. द अमाउंट विल कम 6 लाख. दैट मीन्स आपने 4 लाख का शेयर इशू कर दिया है एंड 6 लाख का शेयर अभी तक इशू नहीं किया है. ऑलराइट, ओके, इशूड कैपिटल 40,000 है. ओके, अभी इसको इतना आपने यहाँ पे इसको अभी छोड़ दो. ऑलराइट, अभी इसकी बात करते हैं इशूड कैपिटल की. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इशूड कैपिटल, सो व्हेन यू इशू द कैपिटल, तो हाउ मच इन्वेस्टर्स हैव सब्सक्राइब्ड योर शेयर्स. कितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजा है, कितने लोगों ने परचेज करने के लिए एप्लीकेशन लिख कर एप्लीकेशन मनी आपको दिया है. ओके, जिन लोगों ने आपका शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई किया है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक के नहीं कुछ लिया है, दे आर कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. जो अब तक के हुआ नहीं है, बिका नहीं है शेयर्स, आपके पास ही है अभी तक के वो. ऑलराइट, तो 40,000 में 30,000 इक्विटी शेयर जो है वो सब्सक्राइब्ड हो चुका है. दैट मीन्स लोगों ने परचेज़ किया है. और जो 10,000 बचा हुआ है, ये लोगों ने परचेज़ अब तक के
नहीं किया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अभी देखो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है। सो बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज 1 शेयर देन यू हैव टू पे 10 रुपीज़, इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज 2 शेयर्स देन यू हैव टू पे 20 रुपीज़, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज 3 शेयर्स तो आपको 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, मतलब एक शेयर का यू हैव टू पे 10 रुपीज़। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब ये वो पैसा होगा जो कंपनी ने कॉल करके मंगाया, दैट इज़ 30,000 इक्विटी शेयर्स है। ओके, पूरा इक्विटी शेयर्स है, बट कितना रुपया पे किया, ओनली 5 रुपीज़ पे किया है। ऑल राइट, अनकॉल कैपिटल, कॉल करना बाकी है, अब तक के पैसा नहीं आया है, दैट इज़ ₹4। ओके, 30,000 इक्विटी शेयर्स और ₹4 ईच, 4 रुपया पैसा आने का बाकी है। और रिजर्व कैपिटल जो है ये आपने पहले ही ले लिया है, जो आपके पास रिजर्व्ड है। ऑल राइट, 1 रुपीज़ का, तो देखो 5 रुपीज़, 4 रुपीज़ और 1 रुपीज़ कितना हो जाता है, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका जो शेयर का वैल्यू है वो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉल्ड अप कैपिटल। ओके, तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब इतना पैसा कॉल करके आएगा आपको, उसमें से कितना पैसा आया और कितना नहीं आया, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। 30,000 इक्विटी शेयर्स 5 रुपये से, 5 रुपीज़ से, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, अमाउंट कितना होएगा, 1 लाख, मतलब इतने लोगों ने पेड अप कॉल रिसीव किया एंड अमाउंट पे किया। कॉल्स इन एरर्स मतलब उतने लोगों ने पैसा कॉल उनको गया बट उन लोगों ने कॉल रिसीव नहीं किया। ओके, दे जस्ट फेल टू रिसीव द कॉल, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरर्स, इतना पैसा अभी तक के पे नहीं हुआ है। ऑल राइट, तो ये केस में क्या होता है, कंपनी फिर से कॉल करती है, 2-3 बार कॉल करती है, और अगर उन लोगों ने शेयर परचेज अमाउंट पे नहीं किया, ओके, इक्विटी शेयर का रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं किया, तो ये केस में होता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी क्या करती है, वो शेयर कैंसिल कर देती है। दैट विल ऑल्सो गोइंग टू लर्न। ओके, तो अभी जितना हमने पढ़ा, अगेन वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ऑल राइट, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल एक ही नाम है। सो ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स। ओके, सो इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यू हैव ऑलरेडी मेंशन द अमाउंट, इसकी वजह से आपको परमिशन मिला है कहाँ से, ROC से। ओके, सो नाउ जितना आपने मेंशन किया था और जितना पैसा जो ROC ने अलाउड किया, ओके, वो आपका अमाउंट क्या बन जाएगा, ऑथोराइज कैपिटल बन जाएगा। ऑल राइट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर कैपिटल as it is mentioned in the capital clause of memorandum of association, and the company pays stamp duty on this amount at the time of incorporation। जब कंपनी स्टार्ट होगा, at the time of starting of the company have to pay stamp duty, and this stamp duty company is going to pay on the basis of register capital। जितना ज़्यादा रजिस्टर कैपिटल होगा उतना you have to pay stamp duty। all right, authorized capital is calculated considering the need of capital of a company at present and future। ओके, तो authorized capital कैसे कैलकुलेट होता है, on the basis and need of the capital of a present and future situation of the company। all right, चलो, authorized capital is also called as nominal capital, as usually a company never issue the entire authorized capital। okay, so at the same time 1 लाख का परमिशन मिल गया, 1 लाख शेयर्स का, सो कंपनी एक टाइम में पूरा शेयर इशू नहीं करती है, पार्टली इशू करती है, बचा हुआ बाद में इशू करती है, डिपेंड्स अपॉन द नीड्स ऑफ द कंपनी। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ वेरी गुड वे। नाउ एम लिमिटेड कंपनी हैज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख का था वहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था, विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। okay, now if you multiply 1 lakh into 10 then the amount will come, that is 10 lakh rupees। a company can increase its authorized capital by altering its memorandum of association। okay, 1 लाख शेयर का परमिशन मिला है हमको, alright, but if a company required more, if a company need to issue more shares, कंपनी को ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है, so in such case company have to take the permission from the ROC। okay, कंपनी हैव टू अल्टर देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ROC को कॉपी भेजना पड़ेगा, परमिशन मिलेगा, देन ओनली कंपनी कैन इशू फर्दर इशू शेयर्स। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया अभी क्या, ऑथोराइज कैपिटल देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू से इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। हमने ऑलरेडी इसको भी पढ़ा है, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड बाय द कंपनी
टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फॉर सब्सक्रिप्शन. ओके, तो इशूड कैपिटल इज अ कैपिटल. ओके, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल. वी ऑल नो विच कंपनी ऑफर टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, दोस्त हु वांट्स टू इन्वेस्ट देयर मनी, उनको कंपनी क्या करती है, इशू करती है. दोस्त इट इज़ द शेयर दैट अ कंपनी इज ऑफरिंग टू द पब्लिक टू बाय. ओके, सो इशूड कैपिटल क्या है, वो शेयर है, वो कैपिटल है जो कंपनी इशू कर रही है इन टू द जनरल पब्लिक. ऑलराइट, द बैलेंस पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, जो ऑथोराइज का बैलेंस पार्ट बचा था 60,000 वहाँ पे हमने जो देखा था एग्जाम्पल में, नॉट ऑफर टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल. जो बचा हुआ शेयर इशूड नहीं किया था, दैट इज कॉल्ड एज अनइशूड कैपिटल. ऑलराइट, इन द फ्यूचर द कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल. ओके, जो बचा हुआ था, इन फ्यूचर कंपनी कैन इशू दोज शेयर्स. ऑलराइट, द इशू कैपिटल of a company may be equal to or less than the authorized capital. Okay, in one time you can issue entire 1 lakh shares, okay, or less than 1 lakh shares. आप आधा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है वो चीज़. ओके, या कंप्लीट पूरा का पूरा भी आप इशू कर सकते हो. Now let's see the example. M Limited company can have issued capital of rupees 4 lakh divided into 40,000 equity shares एट फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10 ईच. देखा था हमने कितना आया था अमाउंट, 4 लाख रुपीज़. ओके, 4 लाख रुपीज़ 40 इंटू 10 करोगे, इट विल कम 4 लाख रुपीज़. तो 4 लाख का इशूड कैपिटल था. अब देखते हैं अनइशूड क्या हुआ. ईच एंड द अनइशूड कैपिटल विल बी 6 लाख डिवाइडेड इंटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच. ऑलराइट, तो 60,000 शेयर्स क्या था, बचा हुआ था जो कंपनी ने इशू नहीं किया. That share will be called as unissued capital, unissued shares. All right, so ये हो गया. उसके बाद में हमने देखा था issued capital के 2 parts क्या थे, subscribed and unsubscribed capital. Let's talk about subscribed first. Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed or taken up by investors. Okay, ये subscribed वो होगा जो investors ने purchase किया, that is subscribed capital. All right, the public may or may not subscribe for the entire issued capital. Hence the part of the unissued capital not subscribed by the investors is called as unsubscribed capital. Okay, जो शेयर परचेज नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जो बच गया है अब तक के, that capital is known as unsubscribed capital. जो लोगों ने परचेज नहीं किया वो unsubscribed. Thus the subscribed capital may be equal to or less than the issued capital. Okay, so subscribed capital जितना इशू किया वो भी हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है. अगर कम हुआ तो रिमेनिंग क्या बन जाएगा, रिमेनिंग विल बिकम द unsubscribed capital. All right, let's see the example now. If M Limited company has issued capital of rupees 4 lakh, that is issued 40,000 equity shares, then the company's subscribed capital can be 3 lakh divided into 30,000 equity shares of rupees 10 each. ऑलराइट, मतलब 40,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हो गया, 40,000 शेयर्स इशूड किया. ऑलराइट, जिसमें से 3 लाख शेयर्स जो है, 3 लाख शेयर्स वो सब्सक्राइब्ड हो गया. एंड द रिमेनिंग 10,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ. देन वी कैन से इट इज़ अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. देखो आगे, हेंस the unsubscribed capital will be 1 lakh divided into 10,000 equity shares of rupees 10 each. Okay, 10,000 into 10 करोगे, it will come 1 lakh rupees. All right, now let's see called up capital, uncalled capital and reserve capital. Let's see first called up capital. At the time of issue, full value of shares is usually not demanded by the company. That means अगर आपने एक शेयर परचेज किया तो एक शेयर कितने का था, दैट इज़ रुपीज़ 10. तो इफ़ कंपनी यहाँ पे हमेशा पूरा का पूरा पैसा एक बार में नहीं लेती है. ऑलराइट, डिमांड नहीं करती है. आगे देखते हैं, कंपनी कलेक्ट्स द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. ओके, तो कंपनी जो वैल्यू है शेयर्स का, कंपनी विल कलेक्ट बट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी. ऑलराइट, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स. जितना भी इंस्टॉलमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं. Okay, called up capital is that part of subscribed capital which a company has called
or demanded to paid by the shareholders. Okay, it is a money which is demanded by the company from the shareholders. उसको we can say called up capital. The balance capital which is not demanded from the shareholders is called as uncalled capital. ओके जो अभी तक के कंपनी ने डिमांड नहीं किया है, कॉल नहीं किया है, कॉल करना बाकी है, ओके जिसको कॉल नहीं किया है दैट इज कॉल्ड एज uncalled capital. And then see reserve capital. Reserve capital is a part of uncalled capital. Okay, reserve capital is also a part of uncalled capital. A company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the time of winding up of a company to meet its financial requirement. Winding up का मतलब क्या बताया था मैंने, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगा उस टाइम के लिए कंपनी इस पैसे को रिजर्व करके रखती है अपने पास. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. M Limited company may have called up capital of rupees 1,50,000, that is 30,000 equity shares of face value of rupees 10 each, out of which 5 rupees per share has been called up demanded by the company. Okay, तो इसको क्या बोलेंगे, called up capital. If the company decide to keep rupees 1, okay ये rupees 1 है, okay तो ये थोड़ा सा E हो गया है, this is S. Keep rupees 1 per share as capital to be collected at the time of issue, at the time of winding up. The reserve capital will be 30,000, that is 30,000 equity shares of rupees 10 each, where rupees 1 per share is kept as reserve capital. Okay, तो 1 रुपीज़ जो बचेगा आपका शेयर का जो वैल्यू होगा, दैट वैल्यू कंपनी कीप्स असाइड एज अ रिजर्व फॉर एट द कंपनी विल रीपे, बट व्हेन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होने वाला होगा उस टाइम के लिए कंपनी ने इस पैसे को रखा है अपने पास. अनकॉल्ड कैपिटल will be 1,20,000, that is 30,000 equity shares, where rupees 4 per share which will be called up in future. Okay, जो बचा हुआ है कंपनी सपोज टू कॉल, कंपनी ने अब तक कॉल नहीं किया है, कॉल करेगी बट कब, इन अ फ्यूचर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरर्स. पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी actually paid up by the shareholders when the company has called up or demanded them to pay. So when company called and demand the money, okay, and those money is paid by the shareholders, company के call करने के बाद में they paid the money, okay, that capital, that money will be called as paid up capital. All right, the amount not paid up by the shareholders is called up एज कॉल्स इन एरर्स और अनपेड कॉल्स. ओके, मतलब कंपनी ने कॉल किया बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न दे डिड नॉट रिसीव द कॉल, या फिर उन लोगों ने कॉल रिसीव करके कुछ बात नहीं किया, या फिर रिसीव किया बट पे नहीं किया, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉल्स इन एरर्स. अनपेड कॉल्स भी बोलते हैं जिसको. एवरी शेयर होल्डर्स हैज़ टू पे कॉल्स एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड्स. ओके, तो एवरी शेयर होल्डर्स हैव टू पे द मनी, ओके, फेस द मनी which they have purchased the shares, okay, on behalf of the shares they have to pay the money. All right, कब, when company demands. Failure to pay, जिसने पे नहीं किया, failure to pay, the calls may lead to forfeiture of shares. Forfeiture of share मतलब cancellation of shares. All right, see here, taking away of shares by a company due to non payment of calls. company क्या कर रहा है, taking away, that means company is taking their shares again from the shareholder, that is called as forfeiture of shares. All right, now let's see the example. M Limited company has made up a call of rupees 5 per shares. So if all the shareholders have paid the calls, then the paid up capital will be rupees 1,50,000, that is 30,000 equity shares of rupees 5 per share. इतने लोगों को कंपनी ने कॉल किया था, ओके, तो इतना अमाउंट आता अगर सब लोग पे करते तो. बट क्या हुआ, if for example 10,000 equity shares calls are not paid them, then the paid up capital will be 1,20,000 equity shares into 5 per share. Okay, 10,000 shareholders जो equity shareholders है, they did not pay the money or they did not receive the call. Okay, तो remaining जितना उन लोगों ने दे दिया, okay, कितना 20,000, and calls in errors will be 50,000, that is 10,000 लोगों ने नहीं रिसीव किया था into 5, that is 50,000 rupees. All right,
तो इट इज़ वेरी सिंपल एज यू कैन सी हियर एग्जाम्पल के हिसाब से। ऑलराइट, तो ये इतना ही मैटर था। एंड इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो ये सारा का सारा अभी हमने डिस्कस किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये आपको आएगा तो शॉर्ट नोट्स के लिए ये लोग पूछ सकते हैं। ऑलराइट, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो टिल देन स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।